وزیر اعلیٰ کا ڈیرہ غازی خان میں سیاحت کو فروغ دینے کا بڑا فیصلہ۔ فورٹ منرو سمیت کوہ سلیمان رینج میں 10 کروڑ سے زیادہ اسکیمیں شروع کرنے کی اس وقت باقاعدہ طور پر آغاز بھی کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے 34 کروڑ سے فورٹ منرو میں واٹر سپلائی اسکیم بحال کی جائے گی۔ کمشنر ڈی جے خان ڈاکٹر ارشاد احمد کی زیر صدارت کوہ سلیمان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا اجلاس۔ چیئرمین پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی سردار احمد علی دریشک اجلاس میں شرکت، جہاں پر طارق محمود، محمد الطاف بلوچ اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ڈیرہ غازی خان میں سیاحت کو فروغ دینے کا بڑا فیصلہ۔ فورٹ منرو سمیت کوہ سلیمان رینج میں 10 کروڑ سے 7 اسکیمز شروع کی جائیں گی۔ 34 کروڑ سے فورٹ منرو میں واٹر سپلائی اسکیم بحال کی جائے گی۔ کمشنر ڈی جے خان ڈاکٹر ارشاد احمد کی زیر صدارت کوہ سلیمان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا اجلاس۔ چیئرمین پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی سردار احمد علی دریشک اجلاس میں شریک ہوئے۔ طارق محمود، محمد الطاف بلوچ اور دیگر بھی اجلاس میں شریک تھے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر ارکان صوبائی اسمبلی متحرک ملتان ایم پی ایس کا وی سی نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے ہمراہ نشتر 2 سائٹ کا دورہ۔ نشتر 2 پر تیزی سے جاری ترقیاتی کام کو دیکھ کر اظہار اطمینان کیا۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر احمد اعجاز مسعود کی ستائش۔ ایم پی اے سلیم لاور، واصف رام یا طارق عبداللہ اور سبین گل نے دورہ کیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایات پر ارکان صوبائی اسمبلی متحرک ہو گئے۔ ملتان ایم پی ایس کا وی سی نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے ہمراہ نشتر 2 سائٹس کا دورہ اور اس کے علاوہ نشتر 2 پر تیزی سے جاری ترقیاتی کام کو دیکھ کر اظہار اطمینان کیا گیا۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر احمد اعجاز مسعود کی ستائش۔ ایم پی اے سلیم لاور، واصف رام، میاں طارق عبداللہ اور سبین گل نے دورہ کیا۔ ملتان ضلع انتظامیہ کا کورونا ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد جاری ہے اور ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے پر اب تک 23 ایف آئی آرز، 8 لاکھ سے زائد جرمانہ اور 16 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ کوہر رحمان کی رپورٹ دیکھیے۔ ملتان میں کورونا ایس او پیز عمل درآمد نہ کرنے والوں کی شامت آ گئی۔ ضلع انتظامیہ نے ماسک نہ پہننے، سماجی فاصلہ برقرار نہ رکھنے پر 23 ایف آئی آرز درج کر لیں۔ مقررہ اوقات پر دکانیں بند نہ کرنے پر 8 لاکھ سے زائد جرمانے عائد کیے جا چکے ہیں، جبکہ 16 گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا چکی ہیں۔ کورونا چیکنگ کے دوران 6000 سے زائد خلاف ورزیاں پائی گئیں۔ ملتان کی تحصیل شجاع آباد میں کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزیوں پر 2 بس اڈوں کو سیل کیا جا چکا ہے۔ سیکٹری آر ٹی اے کی جانب سے 70 سے زائد گاڑیوں کو بند کیا جا چکا ہے۔ کورونا کی تیسری لہر اور این سی او سی کی نئی ہدایات پر ضلع ملتان میں سختی سے عمل درآمد جاری ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ گوہر رحمان، ملتان۔ دوسری جانب ملتان میں ڈویژنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر کا حسین آگاہی بازار کا دورہ۔ کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 3 دکانداروں کو 15,000 جرمانے کر دیے گئے۔ خلاف ورزی پر 3 مقدمات درج، 3 دکانیں اور 1 میرج ہال کو سیل کر دیا گیا ہے۔ ملتان سے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں ڈویژنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر کا حسین آگاہی بازار کا دورہ۔ کورونا ایس او پیز کے خلاف ورزی پر 3 دکانداروں کو 15,000 روپے جرمانہ، خلاف ورزی پر 3 مقدمات درج، 3 دکانیں اور 1 میرج ہال سیل کر دیا گیا۔ ملتان میں کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے ایس پی گلگشت کا مختلف مارکیٹس کا دورہ۔ ڈاکٹر رضا تنویر کا کہنا ہے کہ لوگوں کو بلا وجہ تنگ کرنا یا مقدموں کا اندراج پولیس کا مقصد نہیں ہے۔ اسی حوالے سے انہوں نے مزید کیا کہا، بتا رہے ہیں یاسر مجید۔ جی، ملتان پولیس کی جانب سے کورونا ایس او پیز پر بھرپور انداز میں عمل درآمد کے لیے کارروائی جاری ہے۔ ایس پی گلگشت ڈویژن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ سر کل آپ نے وزٹ کی ہے، آج بھی وزٹ کی ہے، کیا ہدایات کر رہے ہیں دکانداروں کو، کیا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ ایس او پیز پر عمل درآمد کر رہے ہیں؟ کہ کل بھی ہم نے کافی وزٹس کیے ہیں، آج بھی کیے ہیں، میرے ڈی ایس پیز نے، ایس ایچ اوز نے، اور ہم نے ان کو یہ میسج پہنچایا ہے کہ یہ جو ایس او پیز بنائی گئی ہیں، جو یہ ٹائمنگز بنائے گئے ہیں، یہ ان کی صحت کے لیے ہے، ان کی بہتری کے لیے ہے۔ پولیس کا مقصد بھی کسی کو تنگ کرنا، ایف آئی آر دینا، کوئی ڈانٹ ٹپٹ کرنا نہیں ہے۔ ہمارا مقصد ہے اویئرنیس کرنا۔ ہمارے جو سی پی او صاحب ہیں، آر پی او صاحب ہیں، ایڈیشنل آئی صاحب ہیں، ان کی طرف سے بھی یہ ڈائریکشنز ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ یہ جو بیماری ہے اس کو ہم نے مل کے لڑنا ہے۔ پولیس کا مقصد کسی کو تنگ کرنا، ایف آئی آر کرانا نہیں ہے۔ تو کل سے کل الحمدللہ کافی اچھا رسپانس آ رہا ہے۔ ہم جس علاقے میں جا رہے ہیں لوگ ہمیں بلکہ ویلکم بھی کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ڈسکس بھی کر رہے ہیں اور وہ کوآپریٹ بھی کر رہے ہیں، اور لوگوں کو جب ہم سمجھاتے ہیں تو وہ اس چیز کا کافی اچھا رسپانس بھی دے رہے ہیں۔ اچھا سر، ایک چیز لاہور سے میں سننے کو ملی تھی کہ جو لوگ ماسک نہیں پہنیں گے، عام شہری جو ہم جا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کے احکامات بھی ملے ہیں؟
देखिए, जैसे मैंने बताया कि पुलिस का इख्तियार तो है, वो हर किसी भी टाइम पे यूज़ तो कर सकती है, लेकिन हमारा मकसद है लोगों को अवेयर करना, और आपके चैनल के थ्रू भी हम लोगों को अवेयर ही करना चाह रहे हैं कि मास्क जो है वो उनकी बेहतरी के लिए है, समाजी फासला भी उनकी बेहतरी के लिए है, इसलिए इसको फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर है। टाइमिंग्स जो भी बनाई गई हैं हुकूमत पंजाब की तरफ से, उसको फॉलो करें। ये सारी चीज़ें इसीलिए हैं ताकि इस चीज़ को हम मिल के जो है वो कंट्रोल कर सकें, और पुलिस उनकी हर जगह मदद करेगी। जहाँ पे कोई मसला होता है हम उनके साथ खड़े होंगे, उनको समझाएंगे, दोबारा बताएंगे, और बार बार उनको इसी बात की तलकीन करेंगे, जी आप इस SOP को फॉलो करें। जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से ताजरों को, खासतौर पर जो शहरी हैं, उनको हिदायत की गई है कि कोरोना SOPs पर खास तौर पर अमल दरामद करें, ताकि किसी भी किस्म की ऐसी सूरत हाल न पैदा हो जिसमें ठीक है, आम लोग। बहुत शुक्रिया। यासिर मजीद हमारे साथ मौजूद थे। मुल्तान में ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में 62 प्रोफेसर्स की भर्ती के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली गई हैं। यूनिवर्सिटी के बजट में 42 सीटें मौजूद। यूनिवर्सिटी पहले ही 1 अरब 16 करोड़ के हिसारे का शिकार है। यूनिवर्सिटी को असातिज़ा और स्टाफ को तनख्वाहें देने में मुश्किलात का सामना है। 63 सीटों की भर्ती पर सवालिया निशान। जिस डिपार्टमेंट में भर्ती की दरखास्तें ली, वहां पहले से ही जायद असातिज़ा मौजूद हैं। सोशल साइंसेज और इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट शामिल हैं। आपको अहम खबर दे रहे हैं मुल्तान से, जहां पर ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में 62 प्रोफेसर की भर्ती के लिए दरखास्तें तलब। यूनिवर्सिटी के बजट में 42 सीटें मौजूद। यूनिवर्सिटी पहले ही 1 अरब 16 करोड़ के खसारे का शिकार है। यूनिवर्सिटी को असातिज़ा और स्टाफ को तनख्वाहें देने में मुश्किलात हैं। 63 सीटों की भर्ती पर सवालिया निशान है। जिस डिपार्टमेंट में भर्ती की दरख्वास्तें ली, वहां पहले से ही जायद असातिज़ा मौजूद है। सोशल साइंसेज और इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट शामिल हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान में ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में 62 प्रोफेसर्स की भर्ती के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली गई हैं। यूनिवर्सिटी के बजट में 42 सीटें मौजूद। यूनिवर्सिटी पहले ही 1 अरब 16 करोड़ के हिसारे का शिकार है। यूनिवर्सिटी को असातिज़ा और स्टाफ को तनख्वाहें देने में मुश्किलात का सामना है। 63 सीटों को भर्ती पर ये सवालिया निशान है। जिस डिपार्टमेंट में भर्ती की दरख्वास्तें ली, वहां पहले से ही जायद असातिज़ा मौजूद हैं। सोशल साइंसेज और इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट शामिल हैं। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। मुल्तान ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में 62 प्रोफेसर्स की भर्ती के लिए दरखास्तें तलब कर ली गई हैं। यूनिवर्सिटी के बजट में 42 सीटें मौजूद हैं, जबकि यूनिवर्सिटी पहले ही 1 अरब 16 करोड़ के खसारे का शिकार है। यूनिवर्सिटी को असातिज़ा और स्टाफ को तनख्वाहें देने में मुश्किलात का सामना भी है। 63 सीटों की भर्ती पर सवालिया निशान। जिस डिपार्टमेंट में भर्ती की दरख्वास्त ली, वहां पहले से ही जायद असातिज़ा मौजूद हैं, जबकि सोशल साइंसेज और इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट भी शामिल हैं। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। मुल्तान ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में 62 प्रोफेसर्स की भर्ती के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली गई हैं। यूनिवर्सिटी के बजट में 42 सीटें मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी पहले ही 1 अरब 16 करोड़ के खसारे का शिकार है। यूनिवर्सिटी को असातिज़ा और स्टाफ को तनख्वाहें देने में मुश्किलात भी हैं। रहीम यार खान नवाही इलाके बंगला चक 142 टिब्बा के गवर्नमेंट गर्ल्स और बॉयज प्राइमरी स्कूल के बाहर सीवरेज के पानी का मामला। रोही की खबर पर डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद का नोटिस। CEO एजुकेशन और मुतल्लिका अफसरान जो फौरी मसला हल करने की हिदायत की गई है। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की टीमों ने काम शुरू कर दिया है। CEO एजुकेशन ने स्पेशली विजिट भी किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। रोही की खबर पर यह एक्शन लिया गया है रहीम यार खान में, जहां पर नवाही इलाके बंगला चक 142 टिब्बा के गवर्नमेंट गर्ल्स और बॉयज प्राइमरी स्कूल्स के बाहर सीवरेज के पानी का मामला। रोही की खबर पर डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद का नोटिस आ गया। CEO एजुकेशन और मुतल्लिका अफसरान जो फौरी मसला हल करने की हिदायत भी कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की टीम्स ने काम शुरू कर दिया है। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की नाकिस कारकर्दगी। शहर की मसरूफ मार्केट्स में गंदगी के अंबार लग गए हैं। शाहीन मार्केट, आगापुर, बस्तीदारा, पीरा गायब रोड पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। बिलाल न्याजी की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान सफाई कंपनी के दावे ठोस। शहर में सफाई की नाकिस सूरत हाल। मसरूफ तरीन मार्केट्स और शाहराहों पर कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। शाहीन मार्केट, आगापुर, पीरा गायब रोड पर जगह जगह कचरा मौजूद है। ये इतनी गंदगी है, कई बार जो है ना इन इदारों से हम कह चुके हैं यहाँ जो है सफाई का कोई इंतजाम किया जाए। काफ़ी तमाम मार्केट्स वाले अहले इलाका ने मिलकर बहुत सी दरखास्तें दी हैं, लेकिन इस पर किसी किस्म का कोई अमल नहीं हो रहा। बदबू और ताफुन से शहरी परेशान है। MD सफाई कंपनी फखरुल इस्लाम डोगर ने रोही को बताया कि शहर की सफाई के लिए नई हिकमत अमली बनाई जा रही है। जल्द सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। दूसरी जानब कलेक्शन पॉइंट्स को भी साफ नहीं किया जा सका। शहरियों ने सफाई कंपनी की कारकर्दगी पर
ब्रहमी का इजहार करते हुए फौरी सफाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। खानेवाल के गुंजानाबाद इलाकों, मदीना कॉलोनी और निशात टाउन का सीवरेज सिस्टम नाकारा होने के बायस गंदे पानी से ताफुन फैल गया। अहले इलाका को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। खानेवाल के गुंजानाबाद इलाके, मदीना कॉलोनी और निशात टाउन के रिहायशियों का कहना है कि गुज़िश्ता एक माह से सीवरेज सिस्टम नाकारा होने के बायस गटर उबल रहे हैं। गलियों और सड़कों पर गंदा पानी जमा हो गया है। आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। यहाँ गरीब लोग आबाद हैं। यहाँ पे ये सीवरेज का निज़ाम जो बिल्कुल नकारा है, पानी रुक जाता है, हमारे घरों में पानी चला जाता है। हमारे ना बुजुर्ग नमाज पढ़ सकते हैं, ना मस्जिद जा सकते हैं, ना इबादत के लिए जा सकते हैं। अहले इलाका कहते हैं कि जहां गंदे पानी ने ताफुन फैला रखा है, वहीं मच्छरों की बहुतात से रिहायशी लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तकलीफ हमें, पानी कपड़े खराब हो जाते हैं, जगह जगह गंदा, गटर खुले हैं, गटर उभर रहे हैं, बल्कि कई माह से कोई तवज्जो दे ही नहीं रहा। बराए मेहरबानी तवज्जो दें। अहले इलाका कहते हैं कि मुतअद्दिद बार दरखास्तें दी मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। अफसरान कहते हैं कि वजीर आला पंजाब के दौरे की तैयारी में मसरूफ हैं। दूसरी जानिब म्यूनसिपल कमेटी के सैनिटरी इंस्पेक्टर फरहान काजी का कहना है कि सीवरेज लाइन बंद है, मशीनरी दीगर इलाकों में काम कर रही है, बहुत जल्द मसला हल करेंगे। तमाम अहले इलाका ने वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही न्यूज, खानेवाल। बहावलपुर में पोलियो के खिलाफ 5 रोजा मुहिम। पहले 2 रोज के दौरान 4,76,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा चुके हैं। कितने वालिदैन ने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार किया, जानते हैं अतर लाशारी से। इसी वाले से बात करते हैं कि पोलियो की जो मुहिम है वो जारी है बहावलपुर में, और कितने अब तक बच्चे कवर हो चुके हैं, टोटल टारगेट क्या है। डॉक्टर जाकिर अली मेरे साथ मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर प्रिवेंटिव प्रोग्राम। जाकिर भाई, कितना टोटल टारगेट है आपका पोलियो का, और अब तक कितने कवर हो चुके हैं, और एसओपीज को कैसे फॉलो कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि ये जो इस साल की दूसरी कैंपेन 29 मार्च से स्टार्ट हुई थी और आज कैंपेन का तीसरा दिन है। जबकि हम बात करें कि 2 दिन में कितनी कवरेज हुई है, वो 4,76,000 बच्चे हम कवर कर चुके हैं, जबकि हमारा टारगेट था 7,17,694 के करीब। वो टेंटेटिव है, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। और इन 2 दिनों के दरमियान 21 रिफ्यूजल सामने आए, जिनमें से हमने 14 को कवर कर लिया, 7 बचे हुए हैं। लेकिन जो शरह है रिफ्यूजल की वो कम होती जा रही है, क्योंकि पिछली कैंपेनों के दौरान हमने एफआईआर भी दी, फिर उनका सेमिनार भी किया जो वालिदैन रिफ्यूजल थे, तो उसकी वजह से इस दफा ये देखने में आया कि रिफ्यूजल की तादाद बहुत कम है। तो आज इंशाअल्लाह ताला कैंपेन का तीसरा दिन है। शाम को जब रिपोर्ट कलेक्ट होगी हमारी, उसके बाद फिर 2 दिन का कैचअप है जो कि 1 और 2 अप्रैल को चलेगा। बिल्कुल ठीक है, 1 और 2 अप्रैल को भी चलेगा। 7,17,000 से जायद जो है वो टारगेट है, जिसमें से 4,76,000 बच्चे जो हैं वो कवर हो चुके हैं। और खास तौर पर इस दफा अच्छी बात यह है कि जितने वालिदैन सबसे ज्यादा रिफ्यूज करते थे कि वैक्सीन नहीं लगवानी, पोलियो के कतरे नहीं पिलवाने बच्चों को, तो अब उनकी तादाद में कमी आई है और अब 7 ऐसे वालिदैन रह गए हैं जिन्होंने इनकार किया है और उनको बहुत शुक्रिया तरलाशारी तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सरगोदा में दूसरी जानिब आरपीओ अशफाक खान की जानिब से औरतुल रूम का इनेकाद किया गया। अपीलों की समाअत पर पुलिस एहलकारों को मुख्तलिफ सजाएं, नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान में तारीफी असनाद तकसीम की गई। दौरान ड्यूटी इख्तियारात से तजावुज करने वालों को सजाएं मिलेंगी, ये कहना है आरपीओ का। उन्होंने मजीद कहा, नाक़िस कारकर्दगी पर पुलिस एहलकार का एहतसाब जरूरी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सरगोदा में आरपीओ अशफाक खान की जानिब से अर्जल रूम का इनेकाद किया गया। अपीलों की समाअत पर पुलिस एहलकारों को मुख्तलिफ सजाएं दी गई हैं। रहीम यार खान में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राव मोहम्मद सलीम का डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने खवातीन और बच्चों की बैरकों का मुआयना किया। राव मोहम्मद सलीम ने रमजान मुबारक में सहरी और इफ्तारी के इंतजामात का जायजा लिया है। खवातीन और नौ उम्र असीरान के मसाइल सुने, उन्हें हल करने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। मामूली जुर्म में मुलव्वस 10 कैदियों को जाती मुचलकों पर रिहाई का हुक्म दिया गया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को सलामी दी। जेल में सुई गैस की फराहमी के लिए जेल इंतजामिया की काविशों को सराहा। हाईकोर्ट बार मुल्तान में वकला की जानिब से कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद की मुहिम जारी है। हाईकोर्ट बार के ओहदेदारान ने वकला में फ्री मास्क और सैनिटाइजर्स तकसीम किए। मजीद जानते हैं महर इमरान से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम हाईकोर्ट बार में मौजूद हैं और कोरोना की जो तीसरी खतरनाक लहर है
इस बढ़ती वबा से बचने के हवाले से जो हिफाजती इक़दामात हैं वो किए जा रहे हैं। यहाँ पे हाई कोर्ट बार उहदेदारान की जानिब से वकला में जो मास्क और सैनिटाइजर तकसीम करने का एक सिलसिला जारी है। यहाँ पे सदर हाई कोर्ट बार सबसे पहले उनसे जानेंगे, सैयद रियाज हुसैन गिलानी साहब से क्या कहना चाहेंगे। आज हमने ये अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की है और इसके साथ हम वकला में फ्री मास्क और सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कोरोना की ये तीसरी वबा इंतहाई खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इससे बचाव के लिए वकला चूंकि निज़ाम इंसाफ का एक बहुत अहम हिस्सा है और लोगों को इंसाफ फराहमी में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, तो इनकी सेहत का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। इसलिए आज बार एसोसिएशन की जानिब से इस फंक्शन का इनेकाद किया गया और अभी दुआ भी हमारे सीनियर चौधरी इशफाक साहब ने फरमाई है कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और इस मुल्क को और इस कौम को इस वबा से निजात देता। हम सबको इस वबा से निजात फरमाए। जनरल सेक्रेटरी साहब से हम जानेंगे ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा और क्या मशवरा देना चाहेंगे साइलिन को, वकला को। इंशाल्लाह ये हमारा खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा और तमाम मौजूद मेंबरान को, साइलिन को यही हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें। बिल्कुल एहतियात का दामन ना छोड़ें, अपनी और दूसरों की ज़िंदगी का ख्याल रखें। हाईकोर्ट बार में अदालती अमला समेत मुख्तलिफ लोगों को जो कोरोना के वायरस में मुब्तला भी हैं उनकी सेहत याबी के लिए भी दुआ की गई और इस हवाले से एक मशवरा भी दिया जा रहा है। जो गैर ज़रूरी साइलिन है वो अदालतों में मुतलका उनके साथ पेश ना हो, गैदरिंग से पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। महर इमरान, शुक्रिया। कोरोना के बढ़ते खदशात के बायस मुल्क भर में लॉकडाउन सख्त। मुल्तान में आज रात से शादी हॉल्स मुकम्मल बंद कर दिए जाएंगे। मारूफ मुहक्किक ताज मोहम्मद ताज की रोही से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं जमाना कदीम में भी मुंह से बीमारियों ने सर उठाया मगर इख्तियात के बायस बीमारियों पर काबू पा लिया गया। हुकूमती एसओपीज हमारे मफाद के लिए हैं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं वसीम शहजाद से। जी बिल्कुल, कोरोना के बढ़ते हुए खदशात के बाइस लॉकडाउन को सख्त किया जा रहा है और इसके साथ साथ अगर जनूबी पंजाब भर की बात कर लें तो आज से जो शादी हाल्स हैं वो भी बंद कर दिए जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ मारूफ मुहक्किक ताज मोहम्मद ताज मौजूद हैं जिनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। ताज साहब, अगर बात करते चले कोरोना की तो कोरोना के खदशात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तहकीक क्या कहती है इस बीमारी का जो है वो इलाज क्या है? अगर हम बात करते चले इससे पहले भी एसओपी की जाहिर बात है इसका इलाज है, अगर बात करते चले इससे पहले की तो माजी में कौन कौन सी ऐसी बीमारियां थी जिनकी वजह से सोसाइटी को शदीद नुकसान पहुंचा और उनका हल क्या निकला? देखिए, जरूर बात ही है कि एसओपीज पे हमें लाजमी अमल दरामद करना चाहिए। इस जमाने से पहले भी पिछले दौर में तौन की बीमारी फैली तो उन्होंने अलहदगी अख्तियार की, अलहदगी से वो बचे। अब ये देखें कि मलेरिया भी हुआ, वो भी एपिडेमिक उसने शक्ल अख्तियार की, उसके लिए भी हमने मुख्तलिफ तदाबीर वगैरह अख्तियार की, तभी जाकर हम कंट्रोल किया हमने। अब जो है हुकूमत की तरफ से एसओपीज जो उन्होंने कहा है उस पर अमल दरामद करना चाहिए। इसी में ही हमारी बचत है, वरना पता है क्या, इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा, इसका ग्राफ बढ़ जाएगा। देखिए, बात ये है कि ये जो जरासीम है इसका फासला 5.5 फुट तक ये राइज करता है सामने थ्रू आउट, और अल्लाह मियाँ ने इसके बावजूद इंसान को बचाने के लिए सांस नाली के अंदर, इस नाक के अंदर उन्होंने बार रखे हुए हैं अल्लाह मियाँ ने, ताकि इसमें जो है ना जरासीम रुक जाए। मगर इसके बावजूद हादसात बढ़ रहे हैं, इम्यूनिटी कम हो रही है। हमें चाहिए कि हमें अमल दरामद करना चाहिए और ख़ास तौर पर एसओपीज पे अमल लाजमी करना चाहिए, वरना नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। हम आने वाली नस्ल को भी नहीं बता सकेंगे कि हमारे साथ क्या हुआ। ये हमारे साथ मारूफ मुहक्किक ताज मोहम्मद ताज मौजूद थे जिनका इस हवाले से ये कहना था कि बीमारी से बचने के लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। अगर एहतियात ना की गई तो कुछ संगीन नताइज का जो है वो सामना करना पड़ सकता है, इसलिए शहरियों को एहतियात बहुत ज़रूरी है। वसीम शहजाद, शुक्रिया। और अभी अहम खबर से आपको आगाह करें, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान का बड़ा फैसला सामने आ गया है। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और लोधरा में खाली आसामियों पर भर्तियों की खबरों का नोटिस ले लिया है। मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के इंस्पेक्शन जजेस को तकरीरों के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल का भी हुक्म दे दिया गया है। इंस्पेक्शन जजेस तकर्रियों के रिकॉर्ड का जायजा लेकर स्क्रूटनी करें और डीजी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी रिकॉर्ड का मुआयना करके रिपोर्ट भी पेश करें। इस हवाले से आपको बताएं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान का बड़ा फैसला। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और लोधरा में खाली आसामियों पर भर्ती की खबरों का नोटिस। मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के इंस्पेक्शन जजेस को तकर्रियों के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल का हुक्म। इंस्पेक्शन जजेस तकर्रियों के रिकॉर्ड का जायजा लेकर स्क्रूटनी करें। डीजी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी रिकॉर्ड का मुआयना करके इस रिपोर्ट भी पेश करें। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं।
खबर शामिल करेंगे मुल्तान से, जहां पर ईसीसी ने भारत से कपास और यॉर्न बरामद करने की इजाजत दे दी है। जमात इस्लामी ने भारत से कपास बरामद करने को जनूबी पंजाब की ज़राअत पर हमला करार दे दिया है। मुल्कगीर एहतजाज की धमकी भी दी गई है। मजीद जानते हैं जुनैद अनवर से। बिल्कुल, वजीर खजाना हमाद अजहर की जानिब से इक्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास के अंदर जो है वो चीनी, धागा और इसके साथ साथ जो कपास है वो भारत से जो है वो दरामद करने की बात की गई है, जिसके ऊपर जो मुल्तान की समेत पाकिस्तान भर की जो सियासी अपोजिशन जमातें हैं उनकी जानिब से शदीद तनकीद का भी निशाना बनाया जा रहा है। जमात इस्लामी की जानिब से भी इसका जो दरामद जो भारत से जो की जा रही है इसके ऊपर जो है वो शदीद तनकीद की जा रही है। जिला अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशिम साहब मौजूद से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बात की जाए तो कपास की जो पैदावार है वो इस खित्ते से होती है, अब हुकूमत जो है वो भारत से दोबारा जो है वो तजारत करने जा रही है, क्या कहेंगे इसको? वो भारत वही मुल्क है जो अलल ऐलान मोदी और भारत ने ये कहा है कि हमने जो है बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलहदा कराया, ये हमारा क्रेडिट है। क्या उसने उस पर एक्सक्यूज कर लिया है? क्या कश्मीर में जो जालमाना और गासबाना कब्जा किया हुआ है उस पर उन्होंने एक्सक्यूज कर लिया है? क्या जो 9 लाख फौज कश्मीर के अंदर उतारी हुई है और एक जो है सैकड़ों दिनों से वहाँ एक लॉकडाउन है, क्या उसको उन्होंने ख़त्म कर लिया है? क्या बलूचिस्तान और जो है हमारे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दरअंदाजियाँ हैं क्या उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया है या उस पर उन्होंने रिट्रीट कर लिया है? इस सब के बावजूद अगर भारत से दोस्ती की पींगे बढ़ाई जा रही हैं, भारत से ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि हमें माजी को भूलना पड़ेगा, तो फिर हमें जो है बांग्लादेश बनने को भी भूलना पड़ेगा, कश्मीर को भी भूलना पड़ेगा, भारत की वो तमाम पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसियों को भूलना पड़ेगा, तो फिर क्या हम इसके बाद जुनैद अनवर, शुक्रिया। एफबीआर टैक्स रिकवरी के लिए इन एक्शन, बजट से पहले आखिरी तिमाही में बजट टारगेट के हसूल के लिए तमाम मुलाजमीन की गैर जरूरी छुट्टियां और हर किस्म के तबादलाजात और तैनातियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अमजद मलिक से। जी अमजद, बताइएगा। बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बाकायदा तौर पे जो टैक्स रिकवरी है इसको बढ़ाने के लिए इन एक्शन हो चुकी है और बाकायदा जो मरासला है इस्लामाबाद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मुल्तान रीजनल टैक्स ऑफिस को मौसूल हो चुका है, जिसमें तमाम जो गैर जरूरी छुट्टियां हैं अमले की वो भी बंद कर दी गई हैं। जब तक जो बजट है, जो नेक्स्ट बजट आना है, तब तक तमाम जो रेवेन्यू है इसको बढ़ाने के अहकाम जारी किए गए हैं और इसके साथ साथ जो बैरून मुल्क सफर करने के लिए भी तमाम अमले के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। इसी अहम इशू के हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मुल्तान रीजनल टैक्स ऑफिस के असिस्टेंट डायरेक्टर मुख्तार हुसैन तहीम साहब। बताइएगा, एक अहम नोटिफिकेशन जो मौसूल किया हुआ है, कौन कौन से अहकाम जो हैं वो जारी किए गए हैं, क्या करने जा रहे हैं आप आगे इस हवाले से? एक्चुअली मेन तो ये है कि जो आखिरी तिमाही है, जो फोर्थ क्वार्टर है इस बजट से पहले तो उसके लिए गवर्नमेंट ये सारे इकदाम उठा रही है। वो छुट्टियां, एक्स पाकिस्तान लीव हो गई, हर तरह की छुट्टियां, ट्रांसफर पोस्टिंग पे एफपीआर ने बैन कर दिया है ताकि रिकवरी प्रोसीडिंग और बजट टारगेट जो हैं उन पे कोई असर ना पड़े। तो मुलाजमीन में इस तरह जो उन्हें एक छुट्टी का हक था कि जो बैरून मुल्क सफ़र करने वाले थे वो भी अब नहीं कर पाएंगे वो, और जो गैर ज़रूरी छुट्टियां करते थे लोग वो अब नहीं करेंगे, बल्कि अब एफबीआर के जितने टारगेट के हसूल के लिए जितनी कोशिश कर सकते हैं वो करेंगे। वो बिल्कुल, जो गैर ज़रूरी छुट्टियां हैं वो बंद कर दी गई हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर मुख्तार हुसैन तहीम हमारे साथ मौजूद थे और इनका यही कहना था कि बाकायदा तौर पर जो मरासला जारी किया गया फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से, उसमें जो अमला है, मुलाजमीन है, उनकी छुट्टियां भी बंद की गई हैं और टैक्स रेवेन्यू जो है उसको बढ़ाने के लिए जब तक बजट अनाउंस नहीं होता तब तक टैक्स रिकवरी को बढ़ाने के लिए। अमजद मलिक हमारे साथ मौजूद थे। फलिक शेर, असिस्टेंट डायरेक्टर हार्टिकल्चर ज़राअत एक्सटेंशन मुल्तान तैनात, जबकि इस वक्त इस कबल यहां जफर अब्बास बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर हार्टिकल्चर ज़राअत एक्सटेंशन के फराइज सरअंजाम दे रहे थे। आपको अपडेट कर रहे हैं, फलिक शेर असिस्टेंट डायरेक्टर हार्टिकल्चर ज़राअत एक्सटेंशन मुल्तान तैनात हो गए हैं। इससे कबल जफर अब्बास बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर हार्टिकल्चर ज़राअत एक्सटेंशन के फराइज सरअंजाम दे रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फल वक्त इतना ही।